اس پر بھی جنگ کا 19واں روز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ ٹھہر کر اپنا حساب لیتی ہے۔ 19 دن پہلے 27 فروری کی رات کو جب امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کے اوپر حملے کیے، آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا، ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی، میناپ میں اسکول کے اوپر بمباری کی، اور ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے عارضی کمانڈ سینٹر میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ایک اور آپریشن صحرائی طوفان ہوگا، ایک اور جھٹکے میں ختم ہونے والی جنگ ہوگی جس میں امریکہ اپنی طاقت کا لوہا بنوائے گا۔ لیکن آج 19 دن بعد وہی ٹرمپ فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ سے دنیا کے 6 ممالک کو فون کر رہا ہے کہ آؤ مجھے بچاؤ، آؤ میرے بحری جہازوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ المیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، جس نے اتحادیوں کو خون چوسنے والے کہا، آج وہ انہی ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ اس 19ویں روز کی صبح تک کی تفصیل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تمام تاریخی جڑوں، فوجی حقیقتوں اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو کھول کے رکھتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسین۔ یہ جنگ کوئی اچانک نہیں شروع ہوئی، اس کی جڑیں اس خطے کی صدیوں پرانی تاریخ میں پیوست ہیں۔ آبنائے ہرمز کا تنگ راستہ جو کبھی پرتگالی بحری جہازوں کی آمد و رفت کا گواہ تھا، 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد برطانوی سلطنت نے 2 صدیوں تک اس پر اپنی گرفت رکھی۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی بحریہ خلیج فارس میں چھائی ہوئی تھی تو آبنائے ہرمز کی حفاظت کا مطلب تھا ہندوستان تک برطانوی تاج کی رسائی کو محفوظ بنانا۔ 1971 میں جب برطانوی افواج نے مشرق سے سویز کے مشہور اعلان کے تحت خلیج فارس خالی کیا تو امریکہ نے آہستہ آہستہ یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ 1980 کی ایران عراق جنگ میں جب ٹینکر وار کا آغاز ہوا تو امریکہ نے پہلی بار باقاعدہ طور پہ آبنائے ہرمز میں بحری کارروائیاں شروع کی۔ اس جنگ میں امریکی بحریہ نے ایران کے متعدد تیل کے پلیٹ فارمز تباہ کیے۔ 1988 میں آپریشن ٹرائنگ مینٹینس کے تحت ایران کی 2 جنگی کشتیاں ڈبو دی گئیں، اور یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جس پر آج کا المیہ کھڑا۔ لیکن آج کے ٹرمپ کی پوزیشن 1988 کے رونالڈ ریگن جیسی نہیں۔ ریگن کے پاس اتحادی تھی، پوری دنیا کا اعتماد تھا، اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں۔ آج ٹرمپ تنہا ہے، اور یہ تنہائی حادثاتی نہیں ہے، اس کی جڑیں اس کی اپنی شخصیت میں ہے۔ ٹرمپ وہ شخص ہے جو ہار نہیں مان سکتا۔ نرگسیت کی نفسیات میں اسے نارسسٹک انجری کہا جاتا ہے۔ جب ایسا شخص شکست کا سامنا کرتا ہے تو وہ اسے تسلیم نہیں کرتا بلکہ ایک متوازی حقیقت گھڑ لیتا ہے۔ ٹرمپ کی پوری سیاسی زندگی اسی متوازی حقیقت پر بنی۔ اس نے 2020 کا الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا، وہ آج بھی اس پر قائم ہے۔ 2024 میں جب اس نے وائٹ ہاؤس واپس آ کر کہا کہ میں امن کا آدمی ہوں تو اس کے مداح جھوم اٹھے۔ اس کے نائب صدر جے ڈی وینس نے خود 2023 میں وال سٹریٹ جرنل میں لکھا تھا کہ ٹرمپ کو میری حمایت اس لیے ہے کہ وہ امریکی جوانوں کو لاپرواہی سے جنگ میں نہیں بھیجے گا۔ لیکن آج وہی ٹرمپ مشرق وسطیٰ کی ایک نئی جنگ میں پھنسا ہوا۔ اس کا نائب صدر وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم میں بھی اس جنگ پر اتفاق رائے نہیں۔ 19 دن پہلے جب پہلا بم ایران کے شہر نتانز میں گرا تھا، تہران میں گرا تھا، تو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کا 100% خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ فکرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ اس کے نزدیک جنگ جیتنے کا مطلب صرف اعلان کر دینا نہیں ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس۔ آج 17 مارچ کو امریکی سینٹ نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق پہلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے $779 ملین صرف کیے۔ ان میں سے $340 ملین ٹاماہاک میزائلز کے اوپر خرچ ہوئے، $271 ملین جنگی طیاروں کی پروازوں پہ خرچ ہوئے، $122 ملین ہیمارس سسٹم اور انٹیلیجنس پہ خرچ ہوئے۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ انادولو ایجنسی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پہلے 10 دنوں میں امریکہ کا کل نقصان $10.35 ارب تک پہنچا، اور 2026 کے کل امریکی دفاعی بجٹ کا تقریباً یہ 1.5% بنتا ہے۔ لیکن اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوئی۔ پہلے دن کی جوابی کارروائی میں ایران نے قطر کے العدید ایئر بیس پر موجود امریکی AN/FPS 132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو تھا اس کو نشانہ بنایا، اور یہ ریڈار $1.1 ارب کی مالیت تھا۔ اس کے ساتھ ہی بحرین میں امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، جہاں 2 ANGSC-52B سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینل تباہ ہوئے۔ کویت میں کیمپ عرفجان میں 3 بڑے ریڈومز تباہ کیے گئے جن کی مالیت $30 ملین۔ دوسرے روز کویت کی فضائیہ نے اپنے ہی اتحادیوں کو نشانہ بنا دیا، اور امریکہ کے 3 F-15E اسٹرائک ایگل طیارے دوست افواج کی فائرنگ سے تباہ ہو گئے۔ ہر طیارے کی قیمت $94 ملین ہے، کل $282 ملین کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد MQ-9 ریپڈ ڈرونز کی باری آئی، 4 ڈرون مار گرائے گئے، ہر ایک کی قیمت $30 ملین، کل $120 ملین۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کو لگا۔ 2 ANTPY 2 ریڈار کمپوننٹس متحدہ عرب امارات اور اردن میں تباہ ہوئے، اور ہر ایک کی قیمت
$500 मिलियन, कुल $1 अरब से ज्यादा का नुकसान। अनादोला एजेंसी ने अब तक अमेरिकी असासों का कुल नुकसान $2.55 बिलियन लगाया है, लेकिन यह सिर्फ बराह रास्त फौजी नुकसान है। रोजाना $1.5 बिलियन का खर्च आया और अमेरिका ने खुद उसको क्लेम किया। फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंग 2 माह तक जारी रही तो अमेरिका को 40 से $95 अरब के बराह रास्त अखराजात और 50 से $210 अरब के बिलवास्ता इक्तसादी नुकसान का सामना होगा। और यह बिलवास्ता नुकसान टैरिफ से होने वाले $179 बिलियन के नुकसान से भी ज्यादा। इसकी सबसे बड़ी वजह आबनाए हरमुज की बंदिश है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 27% खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत, समुद्री तिजारत और 20% माया कुदरती गैस इसी रास्ते से गुजरती है। पिछले साल 2025 में रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल इसी आबनाई से गुजरता था। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि इस आबनाई की बंदिश से आलमी खुराक की कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि तेल की कीमतों का बराह रास्त असर खादों की कीमतों पर पड़ता है और खादों की कीमतों का असर खुराक पर। इस वक्त आबनाए हरमुज से बहरी आमदोरफ्त 97% कम हो चुकी है। वो जो 3% है दोस्त ममालिक जिनके वज़राए खारजा फोन करते हैं और बकाई साहब उनको गुजरने की इजाजत दे देते हैं। यहां वो सवाल पैदा होता है जिसे CNN के तजियाकार विक्फी का तजाद कहते हैं। अगर आपने ईरान की फौजी सलाहियत 100% तबाह कर दी तो वो आबनाए हरमुज कैसे बंद कर रहा? अगर वो मुकम्मल तौर पे सर कटा चुके हैं तो वो थार्ड सिस्टम कैसे तबाह कर रहे हैं? इस तजाद की वजाहत सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि ट्रंप की 100% अमरीकी अवाम के लिए एक प्रोपेगेंडा है हकीकत है, और अब ये प्रोपेगेंडा टूट रहा है। कैलिफोर्निया के अंदर पेट्रोल की कीमत $5 फी गैलन से तजावुज कर चुकी है। ये वो चीज है जिसे ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी पूरी सियासी शनाख्त मईशत के ऊपर बनी है। एक इजरायली सिफारतकार ने अल मॉनिटर्स को यह बताया था कि ट्रंप का सारा फोकस स्टॉक मार्केट पे है। वो कमजोर डॉलर और महंगी अशिया नहीं चाहता, खास तौर पे उस वक्त जब आवाम में जंग की हिमायत हो। लेकिन असल कमजोरी जो 19 दिन में सामने आई है वो अमेरिका की तन्हाई। ट्रंप ने चीन को तहजीब का दुश्मन कहा, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए, जापान और जनूबी कोरिया को तहकीर से देखा और नेटो को मुर्दा करा। अब जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं ममालिक से मदद मांगी। चीन पहले ही रूस से जमीनी रास्ते तेल खरीद रहा है, उसे आबनाए हरमुज की कोई परवाह नहीं। फ्रांस और जर्मनी इस जंग में शरीक नहीं होना चाहते। जापान और जनूबी कोरिया अभी टैरिफ के जख्म भूले नहीं और बरतानिया अपनी सिफारतकारी से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। इसके बरक्स ईरान की पोजीशन मजबूत हो रही है। यह देखकर हैरत होती है कि जिस मुल्क पर अब तक $779 मिलियन के मिसाइल गिराए जा चुके, जिसकी एटमी तंजीबात तबाह हो चुकी, जिसके सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही हमले में शहीद हो चुके, वो मुल्क आज भी मजबूत खड़ा है। उसकी वजह सिर्फ एक है, ईरानी कौमी यकजहती और तारीखी शऊर। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को माहिरीन की असम्बली ने सिर्फ 24 घंटों में सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। और यह तसलसल मगरबी तजियाकारों के लिए हैरान कुन था, जो बरसों से ईरान के मुमकिना खात्मे की पेशगोइयां कर रहे थे। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट जो इस हफ्ते लीक हुई वो वाजे करती है कि बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई भी ईरान में हुकूमती तब्दीली का बायस नहीं बन सकती। उसकी वजह ईरान का मज़ाहमती मईशत का मॉडल है। बरसों की पाबंदियों ने ईरान को यह सिखाया कि तेल की आमदनी पे इन्हसार कम किया जाए, गैर तेल की बरामदात बढ़ाई जाए, मकामी सनत को फरोग दिया जाए। आज ईरान की मईशत गिर चुकी है लेकिन तबाह नहीं। और सबसे अहम बात यह कि ईरानी अवाम में यह एहसास हो चुका कि उन पर जुल्म हो रहा है। जब बाहर से हमला होता है तो दाखिली इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। तारीख गवाह है कि ईरान पर होने वाले हमलों ने उसे हमेशा मजबूत किया। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो खुमैनी ने इसे मुकद्दस दिफा का नाम दिया और 8 साल जंग में ईरान ने न सिर्फ सद्दाम को रोका बल्कि इराकी सरजमीन पर भी कब्जा कर लिया। आज भी ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब, जिसकी बरसों से तबाही की पेशगोई की जाती रही, वो न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसका सियासी और मौशी असर और रसूख पहले से ज्यादा है। सीनियर तजियाकार रे तकिया ये कहते हैं कि आप जो आज देख रहे हैं वो 5 अप्रैल को तब्दील हो सकता है। 10 नवंबर तक बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपको घड़ी साज की तरह खुद को रोजाना तोड़ के जोड़ना होगा और ये सूरत हाल की पेचीदगी को जाहिर करता है। आज 17 मार्च को ट्रंप की खफकी उरूज पे है। वो ये जानता है कि वो हार रहा है लेकिन हार का लफ्ज जुबान पे नहीं ला सकता, इसलिए वो इसे जीत कहता है और साथ ही मदद मांगता है। केंटकी में उसका बयान याद रखिए कि मैं कह सकता हूं कि हम जीत गए, पहले घंटे में ही जंग खत्म हो गई लेकिन हम जीत गए। अगर जंग पहले घंटे में खत्म हो गई थी तो आज 19वें रोज आप चीन से क्यों जंगी जहाज मांग रहे हैं, चैन से क्यों नहीं बैठ रहे? ये तजाद उसकी शख्सियत का आईनादार है।
नफ्सियाती तौर पर ट्रंप अब इस मरहले में है जहां वो इल्जाम तराशी करेगा, वो ईरान पे मजीद पाबंदियां लगाएगा, मजीद धमकियां देगा, शायद मजीद बॉम्ब भी गिराए, लेकिन उसकी आवाज में वो गरज नहीं रही जो पहले होती। अब उसकी आवाज में बेबसी है, क्योंकि वो ये जानता है कि आबनाए हरमुज को खोलने का कोई फौजी हल नहीं। रिटायर्ड कैप्टन है एक अमेरिका का, लॉरेंस ब्रैनन, जो 1979 के ईरानी यरगुमाली बहरान के दौरान यूएसएस नेमेट्स पे तैनात था, उसने CNN को यह बताया कि आबनाए हरमुज को दोबारा बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए खोलना मौजूदा हालात में नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ईरान के पास सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी। जेनिफर कावाना कहती हैं कि ईरान सिर्फ चंद सस्ते ड्रोन से आबनाए को बंद रख सकता है, और ये अमेरिकन तजियाकार इधर के नहीं है। अमेरिका के पास महंगे तरीन जहाज मिसाइल हैं, लेकिन हर रोज अरबों डॉलर खर्च करके भी वो इस मसले का फौजी हल नहीं निकाल सकते, और इस जंग का सबसे बड़ा खदशा मुस्तकिल करीब में है। अगर ये जंग जारी रही तो क्या होगा? पहला खदशा, तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। अगर ये 120 या 150 तक गई तो आलमी मईशत के साथ बाजारी में चली जाएगी। बार्कलेस के तजियाकार अजय राजा जो है वो ये कहते हैं कि ब्रेंट तेल की कीमत में हर $10 का इजाफा अगले 12 माह में अमेरिकी जीडीपी की शरह नमू में 0.1 से 0.2% कम हो जाएगा। दूसरा खदशा, अमेरिकी गोला बारूद के जखायर खत्म हो रहे हैं। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की जो स्टेसी पैटी है, उसने फाइनेंशियल टाइम्स को यह बताया कि अगर ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो अमेरिका के पास मौजूद 1 साल का जखीरा जल्द खत्म हो जाएगा। तीसरा खदशा क्या है? इजराइल अपनी जंग जारी रखेगा चाहे अमेरिका रोकना चाहे। इजराइल की यह बका की जंग है और वो अमेरिका के सियासी मफादात की परवाह नहीं करता। चौथा खदशा, अमेरिका में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ सकते हैं। वर्जीनिया में फौजी एहलकारों पर फायरिंग हुई, मिशिगन में इबादतगाह पे हमला हुआ, जो इस बात की अलामत है कि जंग का असर अमेरिकी सरजमीन पर भी पहुंच रहा है। सबसे बड़ा खदशा, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? लेकिन वो जो खदशा उनकी जमीन पे पहुंच रहा है, इस ज़मन के अंदर अली लारेजानी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा रहे हैं और 9/11 का एक मामला फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो जंग हार रहा है, अब उसे एक नया जवाब चाहिए। 9/11 वाला एक और जवाब घड़ा जाएगा और ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगला कदम क्या है कि जब नरगसियत पसंद हार जाता है तो वो पूरी दुनिया को अपने साथ ले लेता है। अगर ट्रंप ने ये सोच लिया कि वो हार चुका, उसके पास खोने को कुछ नहीं, तो वह ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को आग लगा। क्या होगा? सोचिए। मैं उस हमले पे नहीं जाना चाहता। खलीज फारिस में क्या तेल की तंसीबात को तबाह किया जाएगा? ये वो हमला जिसकी ख्यास आराइयां। ये ख्यालात तमाम अभी कयास आराइयां नहीं रहे। तारीख में हमने ये देखा है कि जब ताकतवर कौमें अपनी हुदूद से बाहर निकलती हैं तो उनका अंजाम क्या होता है। 2003 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पे हमला किया तो उसने कहा था कि मिशन मुकम्मल हो गया। वो झूठा था। 8 साल बाद वो जिल्लत के साथ इराक से निकला। हजारों अमेरिकी जवान कब्रों में चले गए। आज ट्रंप भी वही रास्ता दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुश के पास दुनिया का एतमाद था, इत्तेहादी थे, मीडिया की हिमायत। ट्रंप के पास कुछ नहीं है। उसका अपना पीट हेगसेथ जो है वो खड़ा होकर बैशिंग कर रहा था मीडिया को कि तुम लोग ये चाह रहे हो कि ट्रंप हारे, तुम लोग एक बयानिया बना रहे हो कि ट्रंप जो है किसी ना किसी तरीके से मात खा जाए। आज 17 मार्च की जब शाम ढलेगी, आबनाए हरमुज पे अंधेरा गहरा होगा, अमरीकी बहरी जहाज फासले पे खड़े इंतजार कर रहे होंगे, ईरानी तेज रफ्तार कश्तियां साहिलों के करीब गश्त कर रही होंगी, तेल के टैंकर्स बेकार खड़ी होंगी, फ्लोरिडा में एक कमरे में डोनाल्ड ट्रंप बैठा टेलीविजन देख रहा होगा, उसके चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं होगा जो पहले। उसकी आंखों में खौफ है। वो ये जानता है कि उसके अंदाजे गलत थे। उसका 100% वाला दावा अब सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि आबनाए हरमुज बॉम्ब से नहीं खुलती, एतमाद से खुलेगी। एतमाद वो चीज है जो ट्रंप ने खुद तबाह कर दी है। उसने दुनिया को बताया कि अमेरिका अब अकेला है, इत्तेहादियों की कोई अहमियत नहीं, ताकत ही सब कुछ है। और जब आज उसे ताकत के साथ साथ एतमाद की जरूरत है तो दुनिया ने मुंह फेरा। जंग शुरू करना ताकत का काम है, मदद मांगना मजबूरी। और जब ताकत वाला मजबूरी पर उतर आए तो समझ लीजिए कि खेल बदल चुका। ट्रंप ने खेल बदलते देखा, अपनी आंखों से बदलते देखा है। और उसने अपनी आंखों से जो देखा है कि उसकी तमाम तर हिकमत अमली जो है वो अजीम अमरीकी फौज आबनाए हरमुज के सामने बेबस खड़ी दिखाई। उसने देखा कि जिस ईरान को उसने तबाह कर दिया वो तेज रफ्तार कश्तियों और सस्ते ड्रोन से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शतरंज की बिसात के ऊपर मात दे रहा। ये 19वां दिन, जंग अभी शुरू, लेकिन इसके नताइज पहले ही वाजे हो रहे थे। ट्रंप हार रहा है। उसकी हार की बाज़गश सिर्फ आबनाए हरमुज तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया में समझी जाएगी। ईंधन की कीमतों में इजाफे की सूरत में, खुराक की किल्लत की सूरत में, मुमकिन तौर पे एक नई आलमी कसाद बाजारी की सूरत में ट्रंप का नाम लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप को अपनी हार का सामना करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा? क्या तस्लीम करेगा या पूरी दुनिया को अपनी अना की भेंट चढ़ाएगा? तारीख की गवाही है कि नरगसियत पसंद हार तस्लीम नहीं करते, मर जाते हैं, हार नहीं मानते।
اور ٹرمپ کی موت کا مطلب کیا؟ لاکھوں بے گناہوں کی موت خاموش ہوگی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک طوفان ہوگا جو کل کو پھوٹ سکتا۔ مجھے دیجیے اجازت۔